सम्माननीय अतिथिगण, सबसे पहले मैं प्रहलाद जोशी जी का नागपुर में स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। The dream of our Prime Minister is to make Indian economy of $5 trillion. And at the same time, we have the dream of Atmanirbhar Bharat. For this dream, we need 4 important sectors, which are the pillar of the Indian society and the country. One is water, power, transport and communication. And power, we are depending upon the thermal power. We are trying our level best to increase the power percentage of solar power, and exactly the green power is our dream. But unfortunately, present situation is we need more production, we need more power, and without power we don't have industry. Without industry, we don't have capital investment, and without industry and capital investment, we don't have employment potential. And that is the reason that the power sector is one of the important sector for all of us. At the same time, the major minerals and minor minerals, as far as the situation is in the country is concerned, we have lot of imports. First of all, I am giving my special thanks and best wishes to Honorable Minister Prahlad Joshi ji, who is successfully implemented the reform in mining sector, and that is the reason that today we have record break production of coal in India. And that is the reason I am giving my special thanks to him. But now the coal demand is increased. Though the production is increased, the demand is increased because the power demand is also increased. And that is one of the reasons that we have a lot of import of coal. And exactly for Atmanirbhar Bharat, we need to increase the production of coal in India. For that reason, we need to find out what are the problems and what are the obstacles. There are a lot of things where a state government is responsible for giving permission for coal mines. My request to Honorable Minister and Honorable Secretary that how much time it will taking to get the permission from the government. The way in which the Indian government has already implemented the reform in the mining sector, then it can be a good thing for the government of Maharashtra to think on the line that what type of reform you can make by which you can reduce the time period. You can use the digitalized system by which people can apply. Everywhere the rate taxation and corruption is giving lot of trouble. So we need to find out the time period, which is very important. In the all government system, the time's word is not there. And because of the corrupt practices and delays, the investor and people are very much fed up. So time-bound approach with transparency, giving permission to the people, investors, it can resolve the problem. So first of all, I will request Honorable Minister and Secretary of Maharashtra that you should find out the way out and what are the plus and what are the minus things and what are the strengths and what are the weaknesses. On the basis of that, you have to formulate the policy by which we can attract the investment in Maharashtra. Now, the most important thing related with the Vidarbha is 75% of minerals of Maharashtra is in Vidarbha area, and 80% of the forest in Maharashtra is in Vidarbha area. Sometimes the forest is becoming anti-development thing for the country. Fortunately, Sudhir ji is the forest minister of Maharashtra and Bhupendra Yadav ji is the forest minister for Bharat Sarkar. And already there is a committee under my chairmanship for clearances for infrastructure. The committee is there, high power committee is there. But the problem is that to getting forest and environment clearance is a very difficult problem. And that is the reason that some of the problem related with the state government and some of the problems are related with the central government.
I will request Honorable Sudhir Babu, let us find out how much application you received for the mining in Maharashtra. Even in my road project, just yesterday I phoned you for some project. Even there is a delay procedure. Yesterday I phoned to the forest officer in Nagpur that 17 cases is pending with him. And this type of red tapeism with the officers should take a stern action against them. They should be terminated from the services, otherwise they can't understand. The time delay is a big problem. When the people are making investment, the meter for interest is started and no one can stop it. And every procedure is delayed. And this is a new fashion in Maharashtra. Some of the MLAs and MPs, they are taking it as an opportunity and they are using their efforts to stop the work. That is not good. We need development. We need supportive role of MLA and MPs for the development. Without that, we cannot create employment potential and we cannot eradicate the poverty. So first of all, whatever the application for mines, either for coal mines or mines for minerals also, that can be first you make the scrutiny of the all proposals on your Sudhir Babu and Dadaji, and you immediately send it to Praladji. I am confident that he is positive, and then give me the list. We will arrange the meeting with the Praladji and Bhupendraji and we will clear it. The problem is that our dream is to make Atmanirbhar Bharat. We have coal, but we now importing huge quantity of coal. We have copper, but we are importing copper. We have aluminium, we are importing aluminium. Everywhere, either it is metal, minerals or coal, big import is there. We are importing fossil fuel of 17 lakh crores. We are importing the coal and minerals more than 15 lakh crores. The hardware in computer industry, the import is going to next 3 years of 25 lakh crores. Then how we can make Atmanirbhar Bharat? Now I will request Honorable Minister Praladji that in the coal mine already, I remember when the Vajpayee ji was the Prime Minister, there was a dispute between the coal ministry and the petroleum ministry that hydrocarbon is the subject, either it is related with the petroleum or the coal ministry. I remember Ram Naik was the Minister for Petroleum and Shehnawaz Hussain was the Minister for Coal. I had taken this subject to Vajpayee ji, and after that Vajpayee ji has taken the decision and fixed up the thing. At that time, Coal India tendered for methane, coal-based methane. Still nothing is going to happen. Only in one Durgapur, they are making methane from coal and getting bio-CNG, and they are making urea in West Bengal. But in Jharkhand, we have availability of methane, CBM. Even in Vidarbha also we can do it. But now we are importing the fossil fuel. Now the methanol is a fuel. In Russia, USA and China and Canada, they are using methanol as a fuel. And the rate of the methanol is 21 rupees per liter. The Deepak Fertilizer and RCF is making methanol, already they are manufacturing. And Assam Petroleum is manufacturing methanol 100 ton per day. Now we can use methanol in the truck in place of diesel. The rate of methanol is 22 rupees per liter. It is going to reduce our imports and reduce the pollution. But the way in which we need investment and development in this area. Now the problem is that ammonium nitrate for mining. There is a big shortage. And from the coal, we can get ammonium nitrate, we can get urea. We are importing the urea of 60,000 crore. But we can make urea from the coal. But still the things are moving. One of the project in Orissa is in the process. I am trying from many years. Still the production is not started. We are importing the urea of 60,000 crore. At the same time, we are importing LPG.
And from the coal, we will get the DME. And now in USA, they are adding 20 to 25% DME into LPG, and it can reduce the cost of the gas cylinder. I will request Honorable Minister Prahlad Joshi ji, for all this import substitute, cost effective, pollution free and indigenous technology in the coal field area, you need to start formulate the policy and to encourage the people. Already you have got the policy, but the policy needs some push up from the higher level, and that is going to reduce our import. I know that grassroots level, either it is state or central government, the big red tapeism is there. Regarding the land acquisition, you just calculate when you decide the mine, how much time it will take for the land acquisition. Sudhir ji, the land acquisition is related with the state government. For National Highway, I am taking every 3-month meeting in Mumbai with the Chief Minister for land acquisition. You as a minister, an efficient minister from Vidarbha, why you are not taking the minister meeting for coordination of land acquisition of mines in Maharashtra? Because already a lot of people have demand. You are declared the policy for the private investment and making commercial mining privatized. How they can start? Government had decided the big number, but the mines are not started. Because when it's going to auction, the land acquisition is not there, and everyone is creating problem, and everywhere the blackmailing is started, and how then you are going to develop Maharashtra? So for that reason, the transparent, time-bound, corruption-free policy we need, and that is all related with the Vidarbha. Without that, we cannot create wealth in Vidarbha. We cannot create employment potential in Vidarbha. And that is the reason that regarding environment, forest and land acquisition, if we can resolve the problem, I feel that it can be a great relief for the development of mine in Maharashtra. Now the other problem is related with the particularly rights of the people. Yesterday I have a meeting with the MD of WCL and his concerning officers. I suggest them you go to your mining office in the region. You call the people and 5 or 6 member expert can please sit there, listen the problem of every individual, and if it is possible, but don't break the law, bend the law, consider the precedents, and on the basis of that take the decision. And if you are not positioned in taking the decision, let us give the rejection letter. The matter will close. If they want to go to the court, they can go. But people are many times coming to our houses and asking for that, they are not getting the employment. The most important thing which I will request Honorable Minister Prahlad ji, I really thankful you for, I request you about using the potential of closed mines. So we have tender for that. Only one mine successfully winner is there. But the 5 mine, no one will apply. So I suggest the Honorable MD that you should tell me what is to be your technical and financial pre-qualification for that. Because as a BOT PPP model, I am the first person who start all this policy in the country. So we will find out the way out. My suggestion to you, when the internal rate of return is not good, the mines are not economically viable, you have to relax, you have to dilution of some policies. If the mine is economically viable, suppose he is giving 1200 rupees as a royalty, but it is not economically viable, you have to somewhere, you and government of Maharashtra both have to make the agreement to take it 800 rupees, then that can be possible. Otherwise, the dead assets are there. That is going to increase the production. So, mine to mine, economic viability is different. And that is one of the reasons that you need to find out the relaxation of the policy with mine to mine on the availability of the coal and the cost of coal production. On the basis of that, you can fix up the policy. The other important thing is the other mining area, manganese ore of India is here. We have a requirement of 60 lakh ton of manganese. And only our production in manganese ore of India is probably 14 to 16 lakh ton. And always it comes to 30 lakh ton. Mr. Bhuseji, you have got lot of mines available with you.
Why you are not making the policy for that? ये आशीष बहुत अच्छा है, इसको समझता है. आप ये माइंड को ओपन कर दो. अगर ये मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया अभी एक्चुअली I am the in charge person for disinvestment, and actually Nirmala ji and me many times I attempted to privatize all this sector. You remember the officers are here. If you don't want to make the audit of your performance and you are not going to increase the production, the day will come that we are helpless. We have to take the decision for privatization for all the mines. It is depending upon you. I always telling to Magnesia of India, why you are not increasing your production? Their profit is good. What the problem is, though the WCL MD and Magnesia of India's MD is here, totally controlled by the central government offices. They are not free to take the decision. And somewhere the people like FA and other people here, other director, they are becoming obstacles. And their total attitude is so negative, they cannot fulfill the expectation related with the production. Somewhere on the state government level, because state government is also the stakeholder. I remember the Magnesia of India's profit is more than 400 to 500 crore per year. But they are not investing their profit. The people are here, they want employment. Country need manganese. But they are not in position expansion of new mines. I don't know what the reason, but where, Sudhirji, you as a senior minister, you sit with the Bhuseji and also with Ashish. Ashish is one of the good MLA who can understand, who can make the follow-up, and he can understand. And you make the policy. And Praladji is very positive. You tell me what are your problem related with the central government. I really thankful to Modi ji and Praladji that they have taken lot of decision related with the reform. But what the problem is, no officer will tell you that what is my problem, because his CR is written by the Secretary Cole. So he always giving the information, sir, है करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. ये सेक्रेटरी ऐसे ही बताते रहेंगे. राज्य हमारा है, हम बोलेंगे वैसा सरकार चलेगी, ये बोलेंगे वैसा नहीं चलेगा. But you need to find out कि where is the problem. तो वो प्रॉब्लम देने के बाद तुम अपोजिशन लीडर जैसे क्या भाषण देते हो? तुम निकालो पूरा उसको, कम टू दिल्ली. ऐसा कैसे नहीं होता? पक्का होगा. और ये एग्जैक्टली ऑन द लेवल वी नीड टू आइडेंटिफाई. जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस करता है, वो पहले एक्सरे निकालता है, ब्लड चेक करता है. पहले ये पूरा एक्सरे और ब्लड चेक करो किसका प्रॉब्लम है, और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ धुलाई करो. अभी एक केब है ना, मैं रोड में अभी कभी अनुभव है, मैं 1 लाख करोड़ का हाईवे मुंबई दिल्ली 2 साल में बना पाया, और यहाँ मेरे घर के सामने 2 किलोमीटर रोड बन रहा है. 11 साल से मैं बना रहा हूँ. 11 साल हो रहे. अभी वो अधिकारी जब मेरे पास आते हैं तो उनके चेहरे देखकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि 11 साल में मैं 30 मीटिंगें कर चुका हूँ. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे ये तकलीफ के लिए ऑनरेबल कोर्ट को, कि जिनके सौजन्य से मुझे ये आनंद लेने को मिल रहा है. I don't have any hesitation to clear it. और इसलिए चल रहा है. वैसे ही चलता रहेगा तो देश का प्रोग्रेस कैसा होगा? I like people who can get the things done. I like people who can get the thing done transparently and honestly. I dislike honest people who don't want to take the decisions. हर सब्जेक्ट को मार्किंग लगा दो, कितने दिन फाइल रखी. मैंने एक अधिकारी को पूछा था, भाई पत्नी से तो प्यार करते हो, उससे भी ज्यादा फाइल से क्यों करते हो, दबा दबा के क्यों बैठे हो? हाँ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लिखो ना उस पर कुछ. और वो जिम्मेदार नहीं है सुधीर, तुम जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, राज्य तुम्हारा है, शपथ मैंने ली है. लोग इनको नहीं बोलेंगे, तुमको बोलेंगे, मुझे बोलेंगे, ये सरकार काम नहीं करी करती. We need to make the performance audit on every level and to understand strength and weaknesses of the subject, and we have to find out the negativity is where, and we need to find out taking decisions for that. प्रहलाद जी हमारे यहाँ फॉरेस्ट है. अभी ये ताड़ोबा उधर है, हमारी उमरेड की माइन बंद कर दी उन्होंने, अभी नोटिस दे दिया इनको.
या जिंदगी भर वाघ ही नहीं आया कोई। ये सुधीर भाऊ, तुम इतना सुना रहे थे प्रहलाद जी को, मैं तुमको पूछ रहा हूं अभी, तो काम बंद करो ना, उसको ऑब्जेक्शन लो। वो कभी वहां को भी वाघ भी नहीं आया इधर नागपुर जिले में, और इधर वो ताड़ो बाका डाल दिया और चलती माइन को बंद कर दिया। हाँ, मुरपार, ये कौन सा काम है? पहले रोजगार नहीं, कोल का प्रोडक्शन नहीं, इंपोर्ट हो रहा है। आप प्रोटेस्ट करो, आओ दिल्ली में, बताओ भूपेंद्र जी को मैं बुलाता हूँ। अनाय से जो लीना नंदन करके है सेक्रेटरी फॉरेन, वो मेरी एडिशनल सेक्रेटरी थी, बहुत अच्छी है। ये ऐसे कैसे काम है? एक बोलता फॉरवर्ड, दूसरा बोलता बैकवर्ड, एक बोलता है स्टार्ट, दूसरा बोलता है स्टॉप। काम नहीं हो पाएगा। बट दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट, एंड प्रहलाद जी इज ऑलरेडी देयर। वी हैव टू, एक समय मैं था, ये WCL में मैं बहुत झगड़ा करता, अभी भी थोड़ा बहुत होता है। ये कोल के बजाय मिट्टी बेचते थे। प्रहलाद जी आप माफ करना, आपके लिए, पर नासिक में कभी जाओ, ये दादा भूसे जहाँ से है ना, टेकड़ी खड़ी की इन्होंने, टेकड़ी पत्थर भेजे पूरे पावर प्लांट में। केस चल रही थी, MACB ने 2-2 हजार करोड़ के दावे डाले थे इनके ऊपर। ये कोल तो एक ने मुझे कहा, बड़े रिस्पॉन्सिबल कोल के जिम्मेदार सेक्रेटरी ने कहा कि अगर हम कोल निकाल लेंगे तो कोल इंडिया को प्रॉफिट कैसे आएगा? अभी ये कोल की कैलोरिक वैल्यू क्या? बीच में मैं पीछे पड़ा, तब आपने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चालू किया। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मेजर इसके लिए है, जो छोटे लोग हैं उनको ये बोलेंगे है ये कैलोरी है, सब गड़बड़ है। वो मैं दावे से कहता हूं, ये जो खोल देंगे, जिसका रेट लेते उसकी कैलोरिक वैल्यू निकल गई तो मैं जो सजा बोलो भुगतने के लिए तैयार। इट इज नॉट फेयर। सोना बेचना है तो सोने के भाव लो, चांदी बेचना है तो चांदी के भाव लो। चांदी बेचते और सोने का भाव क्यों लेते हो? यही एक्सपर्ट है, जो सही है वही है। इसलिए समवेयर कुछ रिफॉर्म प्रोडक्शन में हुए, कुछ माइनिंग सेक्टर में हुए, पर अभी हमारे यहाँ पूरा हमारे डेवलपमेंट का बेस ही माइन है और फॉरेस्ट है। अभी वो फॉरेस्ट टूरिज्म बढ़ा तो टूरिस्ट आने लगे, हम दुनिया में गए, टाइगर कैपिटल नागपुर, टाइगर के बेटा टूरिस्ट आने लगे, तो फॉरेस्ट वालों ने गाड़ियाँ घुमाना बंद कर दिया फॉरेस्ट में, तो रिसोर्ट बंद हो गए। अब वो रहने के लिए जगह नहीं तो क्या जंगल में रहेंगे क्या लोग? फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक कार देता हूँ, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से पोल्यूशन होता है और आवाज़ आता है, तो मैं इलेक्ट्रिक कार आपको देता हूँ, आवाज़ भी नहीं आएगा, प्रदूषण। ज़्यादा कार की परमिशन दो, लोगों को बोलेंगे आवाज़ नहीं करना। 20% फॉरेस्ट में ही जाने देते, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो फॉरेन टूरिस्ट आना भी कम हो गया। कहाँ से रोजगार निर्माण होगा? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। माइनिंग डेवलप नहीं होगा, फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं मिलेगा, माइनिंग बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा, तो क्या करेंगे लोग? और इसलिए कुछ प्रगति हो रही है, पर देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स ऑन ग्रास रूट लेवल। अब ये भी प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, ये भी फोटो निकाल के कार्यक्रम करते हैं। इनका आज हो गया, फोटो निकल गया, मैं नाराज मत होना, पर मैं आपको साफ बताता हूँ, आपने ये कॉन्फ्रेंस करने के पहले ये कितने प्रॉब्लम है जो स्टडी करके एक नोट मुझे, एक प्रहलाद जोशी को और इनको दिए। MSFC को होता क्या देगी कुछ? अगर ये देने के पहले अगर ये पूरे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके अगर वो इस कॉन्फ्रेंस में रिजॉल्व होते तो उसका उपयोग होता। हमारे को सत्कार कर करके कितने शाली और नारियल देते देते तुमने भी दिए और हमने भी लिए, खाक कोई विकास नहीं हुआ। मतलब क्या आता है इस बात को देने में? दिए तो सॉल्व नहीं होते, तो इसका मतलब आप अप्रोप्रिएट जगह पे देना चाहिए ना। व्हाट आर द प्रॉब्लम? आप विद्वान लोग हो, आप कंसल्टेंट हो, और आओ कहाँ गए? आप है ना, आपके साथ वो एक थे साउथ इंडियन, नहीं उनके साथ और एक था, वो माइनिंग का कंसल्टेंट है। नहीं, आप एक था, एक आपके वेद में काम करते थे। आप निकालो ना ग्रास रूट पे क्या प्रॉब्लम है। देखो, बोंबलना सबसे अच्छा है, अगर नहीं बोंबलोगे तो वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना, तो बोंबलते हुए मरो ना। किसने काम नहीं किया, कौन गड़बड़ कर रहा, कौन तकलीफ दे रहा, कौन ब्लैक में कर रहा, चिल्लाओ। पब्लिक को पता चल जाता है तो डर जाएंगे लोग।
आप बोलेंगे कि हम बोलेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आपके पास ये एजेंडा ही तैयार नहीं है। आप प्रोफेशनली इतनी विदर्भ में माइन है, इतनी प्राइवेटाइज हुई है, इसके टेंडर निकले नहीं है, इतने लैंड एक्विजिशन के इतने प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के इतने प्रॉब्लम है, ये प्रोसीजर इतना है जो बहुत डिले करने वाला है, इसको डिजिटलाइज प्रोसीजर में डाल के इतने दिन में परमिशन मिल सकती है। ये हर्षदीप कांबळे को और इनको दो, एक एक परमिशन। दादाजी 1.5-2 साल तो तुम्हारे पास एप्लीकेशन ही नहीं आती, हर फाइल पे बैठा है, क्या काम है, क्यों आए हो, हिलती नहीं फाइल, चाय पानी दो, लक्ष्मी दर्शन किए बिना ऊपर नहीं जाएगा। अब कैसे काम होगा? ये हर्षदीप कांबळे जी का काम है इनका ऑडिट करना कि नागपुर में कितने एप्लीकेशन आई, कलेक्टर के पास कितने आई, कमिश्नर के पास कितने आई, गवर्नमेंट के पास कितने आई, कितने दिन में किसने रखी, कितने दिन क्यों रखी। ये आंकड़ा तुम दोगे तो पता चल जाएगा ना कि ये कौन है पानी रोकने वाला, वो आइडेंटिफाई नहीं होता। और हमारे जैसे बोलने वाले लोग है, आएगी बोल लो जोरों से, सही होगा तो होगा, चिंता क्यों करना किसकी। और इसलिए ये फ्रूटफुल होना चाहिए। अगर कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद 2, 4, 5, 10 निर्णय बदलेंगे, 50-100 फाइल क्लियर हो जाएगी, 10-20 माइन शुरू हो जाएगी तो उपयोग है। नहीं तो खाना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा चले वापस, ये ऐसा नहीं होगा। वी नीड अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम बाउंड अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और कौन बीच में शुक्राचार्य है जो अटका रहा, उसका नाम मालूम होना चाहिए। और नहीं हुआ तो फिर प्रोसीजर आगे नहीं जाएगा। वही माइन बेचारे प्रहलाद जोशी ने 70 फाइन ऑफ प्राइवेट कमर्शियल की, कितनी शुरू हुई भारत सरकार, कितनी एक 2-4 हुई, विदर्भ में कितनी है, वो कहाँ अटकी हुई है, किसके पास अटकी हुई है। ये सुधीर बाबू है फॉरेस्ट मिनिस्टर, अभी इन्होंने लंबा भाषण दिया, दो इनको पहल के कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में इतना रुका हुआ, पहले ये क्लियर करो। प्रॉब्लम यही है कि आप जब तक डिटेल में जाकर इसको फॉलोअप नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, पर मैं ये कहता हूँ कि अब प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटलना, फालतू को फालतू मिलना, समय खराब करना, ये नारियल देना, शाल पहनाना और हमारा फोटो लगाना, हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमें काम में इंटरेस्ट है, और काम में प्रोफेशनल लोगों ने हमको, मैं WCL को पूछता क्या हूँ, तुम्हारा प्रोडक्शन 27 मिलियन टन था, तो मिश्रा जी थे, मुझे बोल रहे थे, मैं बोलता था मैं करूँगा, बढ़ाऊँगा। अब कितना हुआ? 57 लाख टन। अब करना कितना है? 100 मिलियन टन। अब मैंने बोला कितनी माइन ओपन कर रहे हैं? अब ये इनके रिकॉर्ड में ये पिछले 5 साल से माइन ही ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इनका लैंड एक्विजिशन कलेक्टर करता है, फिर इनको देने के लिए पॉलिसी में। तो मैं जब ये प्रॉब्लम समझेंगे, आज प्रहलाद जी 2 बजे मेरे आने वाले हैं, तो अब मैं रोड में क्यों काम कर सकूं? क्योंकि देश भर के एक एक रोड की कुंडली मेरे पास है, और जो नहीं करता उसके नाम से पूरा बोलता हूँ मैं पब्लिकली। तो लोग डरते हैं कि साले कब ये स्काईलैब मेरे ऊपर गिर जाएगी, भरोसा नहीं, पहले निपटाओ, ये गडकरी का काम है, लबड़ा हो जाएगा, लगा। तो आज मैं चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठा था, 3 घंटे की मीटिंग हुई, 2 साल से सब्जेक्ट रुके थे। जैसे उनको मालूम हुआ कि मैं मीटिंग ले रहा हूँ और योगी जी भी खड़ा कर, मैं भी हूँ, पहले मीटिंग में 90% प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, हाँ मैंने सब हो गया। मैंने बोला अच्छा हो गया, मुझे बताओ ये तुमने क्लियर कब किए? बोले सर अभी 10-12 दिन में किया। जब मेरी मीटिंग लग गई तब क्लियर हुए, पहले क्या करते थे तुम? बोले योगी जी इसको ठीक करो, ये मीटिंग लगी तब इसने क्लियर किए, मीटिंग नहीं लगती तो ये बैठा ही था फाइल पर, मोदी जी ने उसको हड़काया, अपना योगी जी ने। ये आइडेंटिफाई करके हो गए तब हो पाएगा। आप ये विदर्भ का प्रोग्रेस मिनरल्स और फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, विदर्भ का ग्रोथ रेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, विदर्भ का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इसके साथ जुड़ा हुआ है। देश में डिमांड है, देश मैग्नीज चाहता है, कोल चाहता है, आयरन ओर चाहता है। एक मुद्दा आप वेरीफाई कर लीजिए प्रहलाद जी, अभी वो आयरन ओर वाला अच्छा काम कर रहा है, बहुत कमा रहा हो, अभी 5 उंगलियां घी में है और 150 टन ही देता हमको रॉयल्टी। तो एक सोचो कि क्या मार्केट प्राइस के साथ रॉयल्टी जोड़ दी जा सकती क्या?
ये अगर आ सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस होगी उसके साथ रॉयल्टी होगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा और वहाँ डेवलपमेंट, गढ़चिरौली जैसे यहाँ डेवलपमेंट के लिए खर्चा होगा। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बात, ये भी मेरा सुझाव है, आप वेरीफाई कर लो अगर ठीक है तो, पर ये पैसा मिलेगा तो, और पैसे में भी आपने माइनिंग फंड निकाला, हमारी महाराष्ट्र की सरकार आई, उनने हमको ही निकाल दिया कमेटी से हमको निकाल दिया और पालक मंत्री को अध्यक्ष बनाया। फिर उन्होंने कहा पैसे बांटे, मेरे को चर्चा नहीं, आशीष को मालूम है पूरा। फिर भारत सरकार को मैंने तकरार की, आपके पास भी की, कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर की, आपने अभी कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया। अब कलेक्टर अध्यक्ष है और हम मेंबर है, सभी मंत्री, कोई भारत नहीं, वो भी चलता है। अब वो मीटिंग नहीं लेता, तो सुधीर भाऊ कलेक्टर इसलिए मीटिंग नहीं ले रहे कि उसमें 3 लोगों को अपॉइंट करना, जो अफेक्टेड लैंड वाले जो है उनके कोटे के 3 लोग अपॉइंट किए बिना कोरम नहीं बनता, कोरम नहीं बनता तो मीटिंग नहीं होती, मीटिंग नहीं होता तो पैसा नहीं बांटता। अब ये कौन दूर करेगा? तो आप और देवेंद्र जी मिलकर एक बार जिसको करना उसको अपॉइंट कर दो, कोरम बना दो, मीटिंग कराओ, तो पैसे चंद्रपुर को भी मिलेंगे, नागपुर को भी मिलेंगे। यह कहीं ना कहीं वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है कि इन सब बातों की चर्चा यहाँ आज हुई है और प्रहलाद जी बहुत पॉजिटिव है, उनने काफ़ी बड़े रिफॉर्म किए हैं। और हम अगर उनके पास जाते हैं, दादाजी आप सुधीर वो बैठकर एक बार बैठो और जितना आपका एजेंडा भारत सरकार के पास पेंडिंग है, एक कॉपी उनको दे दो, मुझे दे दो। मैं पूरा विश्वास है मुझे, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उनकी, और तुरंत आपको फैसले करके देंगे। और महाराष्ट्र का विकास, उसमें विदर्भ के विकास के बिना महाराष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। और विदर्भ का विकास फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल एंड कोल बेस्ड इंडस्ट्री के सिवा नहीं हो सकता, बिकॉज 75% ऑफ द मिनरल्स महाराष्ट्र के विदर्भ में है, 80% महाराष्ट्र का फॉरेस्ट यहाँ है। तो मुझे लगता है कि आखिर में केवल एक ही बात मैं प्रहलाद जी आपको कहूँगा कि हमने अमृत सरोवर बनाने का सर्कुलर फॉरेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर निकाला। अभी मैंने 700 अमृत सरोवर बनाए। अब पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बनाए, बहुत फायदा हुआ। मुझे 2 डिलीट मिली, एक पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी की मिली और एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिली। और अभी परसों मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर औरंगाबाद की मिली। तो एग्रीकल्चर में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एक कुछ भूसे साहब ही हमारे एग्रीकल्चर मंत्री थे, तब इनके साथ ही हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये इतना खुदाई करते हैं तो मैं NHI की तरफ से इनका माल ले लेने के लिए तैयार हूँ। ये साइलो में सोचते हैं, इनका निकला हुआ डंप मैं रोड में डाल दूंगा तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसकी अनुमति मिल सकती है। जो डंप है वहाँ बाम्बू लगा सकते हैं, इनको अनुमति मिली है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। और मैंने पीछे पड़ के इनको सैंड तैयार करने के लिए लगाई। ऐसे सैंड माफिया थे सुधीर भाऊ कि WCL को वार्निंग दिया महाराष्ट्र सरकार ने, पुराने सरकार ने, कि तुम सैंड का रेट नहीं बढ़ाना, क्योंकि जो सैंड माफिया थे उनका फायदा होना चाहिए। इनको कहा तुम रेट मत बढ़ाओ। अब ये कम रेट में देने के लिए तैयार है। तो सैंड का प्रोडक्शन होगा तो जितना कोल से फायदा होगा उसके बराबरी का फायदा सैंड बेच के हो सकता है। हमने टेक्नोलॉजी लाई है। आप सब माइन में अगर ये सैंड बेचने का काम प्राइवेटाइज करोगे तो पर ट्रक ये भी रॉयल्टी आपको मिलेगी और इससे सैंड सस्ती होगी और गरीबों का घर बनाने का सपना पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि आप ये अमृत सरोवर, सैंड को बनाना और प्लांटेशन माइनिंग क्षेत्र में, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इन 3 बातों की तरफ अभी थोड़ा इनको काम को लगाना चाहिए। केवल पोल्यूशन बढ़ाने वाले नहीं तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला भी माइनिंग सेक्टर है। ये इमेज हमको तैयार करनी चाहिए। हमें माइनिंग भी करना होगा और इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो दोनों बातों का समन्वय रखकर ये भी काम हो और ये सबका इसके बारे में परफॉर्मेंस ऑडिट हो, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी आप ज़रूर इनिशिएटिव लीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कॉन्फ्रेंस में जो जो बातों की चर्चा होगी उसका फॉलोअप होगा। उसका दादाजी और सुधीर बाबू बहुत अच्छे मंत्री है और आशीष जायसवाल हमारे अच्छे MLA हैं। वैसे वो भी मंत्री बनते तो अच्छे होते क्योंकि परफॉर्मिंग है।
और अब नहीं बने, आगे होगा, उनके नसीब में तो होगा। पर तुम अभी विदर्भ के माइनिंग सेक्टर की ओनरशिप लो। ओनरशिप के बिना कुछ नहीं होता। बोटानी मलम लोग धंधे ने और काम ने होत कहीं, ओनरशिप लेनी पड़ती है। और वो ओनरशिप आप लो और मेरे पास भी आओ, प्रहलाद जी के पास आओ और इन प्रोजेक्ट को आगे लेकर इसको दौड़ाओ, तो विदर्भ का विकास होगा, विदर्भ की गरीबी भूखमरी दूर होगी, रोजगार का निर्माण होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, क्योंकि इंपोर्ट कम होगा और देश में भी वेल्थ बढ़ेगी। और इसमें निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हम वर्ल्ड में एक सुपर इकोनॉमिक पावर भारत को बनाना चाहते हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हम 5वें नंबर पर आए। जो प्रहलाद जी ने कहा हम इंग्लैंड से भी आगे गए हैं, अब हमको नंबर 1 पर जाना है और उसके लिए इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वेल्थ को क्रिएट करना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाना है, गरीबी को दूर करना है और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो मुझे लगता है विदर्भ के लिए ही ये 2 सेक्टर में काफ़ी बड़ा काम आने वाले समय में होगा और ये कॉन्फ्रेंस हम सबको उसकी प्रेरणा और विजन देगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार मैं प्रहलाद जी को उनके आने के उपलक्ष्य में आप सबकी ओर से और विदर्भ की जनता की ओर से उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देकर उनका अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।